नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे नीट पेपर पर और इस वक्त जो खबरें हैं उनको लेकर जो बवाल चल रहा है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। नीट का सवाल, सड़क पर बवाल। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 15 फरवरी 2012 को मनमोहन सरकार ने गजट जारी किया था देश। कारण नीट आया और पहली बार लीक माफिया को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। तब से हर साल पेपर लीक की चर्चा होती है और कोचिंग सेंटर अपना खेल करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तब से लेकर हर साल 2012 में शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल थे। उनके ये 3 बयान सुनिए जो उन्होंने इस वक्त जो नीट पर बवाल चल रहा है उसको लेकर बोले हैं। Not the NEET exam. I think the issue is the kind of corruption that is taking place. And we've seen it happen in Uttar Pradesh, the kind of paper leaks that happened in Uttar Pradesh. We're seeing it happening all over the country. So there is something really amiss in the manner in which we conduct our examinations. And if the testing system in any examination becomes corrupt, then it's not really neat for the Prime Minister to keep quiet and be silent. Citizen of this country, as a citizen of this country, I think the complexity of this country is such that any kind of uniformity tends to favor a certain class of people. And as you know, that the state of Tamil Nadu has been opposed to the NEET exam from the very beginning, and that's one of their concerns which they have expressed nationally. And there's something to be said for that, because the examination is based on basically the CBSE courses. And therefore it favors students of those schools which have the CBSE examination. And there are lots of boards in India which don't have the CBSE. There are lots of local boards. So sort of any policy decision, this element of uniformity tends to favor a particular class of people. So one, I support that there should be an inquiry, so that those who are responsible for this are brought to book. But I think beyond an inquiry, we need to look at the process. And I think that, again, this government centralizes everything. Every decision is taken on the basis of whims and fancies of authorities in Delhi, India, with 140 crore population and with such a complex social order. I think the center must consult each state and come up with a consensus as to how admissions into medicine are going to take place, and that's very important. So I think, one, yes, inquiry, yes. Two, that there should be consultation, thorough consultation with the states as to how to take this forward, taking into account the criticisms that are coming from very significant quarters. एक साथ 24 से 20 लाख के ऊपर बच्चों को परीक्षा कराना मुश्किल होता है। एक आदमी मिल गया तो पूरा जो बनाया है माहौल पेपरों को लेकर वो खत्म हो जाएगा। और जिस गजट की मैं बात कर रहा था वो ये है, इसी गजट की मैं बात कर रहा था। अब एक चीज़ और अब मैं आपको दिखाता हूँ। एनटीए के नए सिस्टम पर सवाल है। एनटीए ने कुछ ही छात्र बताए और निकले 24,246 छात्र। इन सब में अगर हम देखें, जो तमाम मेरे पास, जो मैं आज इन दस्तावेजों को लेकर बैठा हूं या
सारी चीज़ों को लेकर बैठा हूँ, इस पूरे मुद्दे को लेकर बैठा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि हम शिक्षा पर प्रयोग कर रहे हैं, हम कब इन पेपर लीक, कब इन जो कॉपियां इस तरीके से चेक हो रही हैं, क्या उसका राज है और कौन इस पर बोलेगा? बच्चे सड़क पर हैं। अखिलेश यादव ने एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम, रद्द करा दीजिए, रद्द करा दीजिए। कुछ बच्चों के भविष्य के साथ अगर आपको लग रहा है कि खेलना हो, खेल कहूँगा कि इसमें कुछ छुपाने और रखने के लिए नहीं है। हम रोज एक टॉपिक लेके आए और आपको बताएं भाई ये हो रहा है, मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि नीट पेपर के लेकर इतनी सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है? भाई पहले कहा गया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, और पटना में जो लोग पकड़े गए उन्होंने कबूलनामा कर दिया, गोधरा में जो लोग पकड़े गए उनके पास से पैसा मिल गया। ये इतने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्या कुछ बोला? शुरुआती जानकारी आई थी कि कुछ नीट के संबंध में 2 प्रकार के अव्यवस्था का विषय, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए हैं। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। चलिए अच्छी बात है, आपकी सरकार है भाई, आप गंभीरता से ही लेंगे, हमारे सारे विषयों का एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। ले लिया नहीं है, ले जाएंगे। उससे जो भी बड़े अधिकारी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मान रहे हैं ना कहीं के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो खुद ही कह रहे हैं कई बड़े अधिकारी। एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, इसका तो रोल ही नहीं समझ में आ रहा है। सरकार इस पर चिंता से कर रही है। किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलेगा, और ऐसा कठोर दंड उन्हें दिया जाए जिससे कि आगे वो ऐसी जरूरत ना कर सके। मेरे पास जो एक अखबार में छपी खबर को मैं लेके आया हूँ, उसमें लिखा है नीट 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 मार्च के 24 दिन बाद यानी 9 और 10 अप्रैल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोली तो 24,246 नए आवेदन भरे गए थे, और एनटीए से ये जानकारी मांगी गई कि इन स्पेशल 24,000 आवेदकों को कितने क्वालिफाई हुए, कितने टॉप रैंकर हैं, लेकिन एनटीए ने जानकारी नहीं दी। एक दिन के लिए विंडो खोलने पर कितने छात्र बढ़े ये भी नहीं बताया। हालांकि एजेंसियों के पिछले 2 आंकड़ों से ही संख्या हजारों में निकली है। इस कवायद पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनटीए ने लिंक खोले जाने के पीछे तर्क दिया था कि उसके पास कुछ बच्चों के आवेदन आए थे, वह समय की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। दाखिलों पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि इस बार
ऊपर के रैंक की संख्या गैर अनुपातिक रूप में बढ़ती हो गई, हो सकता है ये स्पेशल छात्र उसी ब्रैकेट के हों। और बड़ा सवाल यही है, केवल हाई स्कोर छात्र क्यों बढ़े, इसी पर चर्चा करेंगे। तनुज दीक्षित हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई कोर्ट तक आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 20 बच्चे। तनुज दीक्षित हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर PS परिहार हैं, संचालक है नीट कोचिंग के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विभू पांडे हैं, नीट अभ्यर्थी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रानू कनौजिया नीट अभ्यर्थी हैं। सबसे पहले तो मैं PS परिहार जी के पास ही जाऊंगा। सर, इससे पहले भी हम लोग कई बार अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। इससे पहले हम CBSE पर चर्चा करके, एक बार हमें याद है कि CBSE पर चर्चा हुई थी, तब मैंने आपको डिबेट में इनवाइट किया था। इस बार नीट है, क्योंकि आप नीट की कोचिंग चलाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, और घेरे में सिर्फ कोचिंगें आ रही हैं, और ये क्या बात सही है कि एक 9 या 10 अप्रैल को ये खोली गई थी विंडो और इसमें 24,000 रजिस्ट्रेशन हुए? ये बिल्कुल सच है। एक्चुअली देखिए, नीट की एक देश का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी NTA, वो पहले से नीट एग्जामिनेशन के एफिलिएशन से जब शुरुआत हुआ रजिस्ट्रेशन का, तभी से संदेह के दायरे में। बीच में आपको विंडो खोलना और उसमें 24,000 स्टूडेंट को एनरोल करना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नो डाउट एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है और रैंकिंग अच्छी होती जा रही है। 67 स्टूडेंट को एक साथ फर्स्ट रैंक बनाना, इट इज टू डिफिकल्ट। क्या 67 स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में 100% स्कोर? इन्होंने एक तर्क दिया कि सबसे पहली घटना जो कैप्चर की गई थी वो बिहार पटना में एग्जामिनेशन के पहले पता चल गया था कि पेपर मार्केट में बाहर बिक रहे हैं। कई जगह जब स्टूडेंट को पता चला पेपर मिले, कैप्चर किया प्रशासन ने, लोगों ने कंप्लेन किया तो पेपर का कुछ जला हुआ पार्ट मिला। NTA को उसी समय एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन NTA ने उसको दबाने का प्रयास किया। शासन की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी, जब बिहार, ये पहले बात तो यही चल रही थी कि छज्जा जो हरियाणा की घटना थी, वहां कहा गया कि स्टूडेंट लेट पहुंचे, पेपर गलत खुल गया, उसको भरपाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। और ग्रेस मार्क्स करने से एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट का 720 स्कोर आ गया, संदेह घेरे में। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वहां की जो प्रिंसिपल थी, CS थी, सेंटर सुप्रिंटेंडेंट थी, उन्होंने कहा ना, मेरे अंशु यादव, उनका स्टेटमेंट आया ना, तो गलत पेपर खुला है। चलिए, मैं फिर से रुक करूंगा PS परिहार जी का। उससे पहले दो दर्शक, ना ही यहाँ पर मैं फिर से सर कोशिश करता हूं, आपका नेट ब्रेक हो रहा है अभी। तो मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। परीक्षा को रद्द करें, दोबारा परीक्षा 1 महीने के अंदर कराएं, और जो सेशन है मेडिकल का उसे 3 महीने आगे बढ़ा दें, और इसके बाद वो प्रारंभ कराएं। क्योंकि सरकार को अगर अपनी विश्वसनीयता रखनी है जनता के बीच में, तो उसे ये करना चाहिए। बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है साफ बताती हैं कि पेपर लीक हुआ था। अब इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द होना ही चाहिए। आप अपनी विश्वसनीयता और सरकार की अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए जनता के बीच में इस परीक्षा को रद्द करके 1 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराएं, और परीक्षा कराने के बाद ये सारे अधिकारी जांच के घेरे में लेकर इनसे कड़ाई से पूछताछ करें। दूसरी परीक्षा कराने वाले अधिकारियों को यहाँ लगाएं और पूरी परीक्षा करा करके 3 महीना सेशन आगे बढ़ा करके पुनः एडमिशन करा दें बच्चों का। मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ। जय जय बंसी वाले भगवान की जय। एक और दर्शक सुरेश अवस्थी हैं कानपुर। सुरेश जी, अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पेपर का मामला, जैसे भर्ती का भी मामला हो या बच्चों की पढ़ाई शिक्षा हो, किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं से कोई धांधली की बू आती है। इसमें अगर अधिकारी खुद टाइट हो जाए और मंत्री लोग कुछ टाइट हो जाए तो कहीं गड़बड़ी होने का कोई सवाल नहीं। बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सवाल, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल इलाकों के पीछे होना चाहिए जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, के बच्चों के पेपर लीक करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। तनुज हमारे साथ बने हुए हैं, तनुज दीक्षित जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं आपका रुख करूंगा
और उसके बाद मैं फिर नीट अभ्यर्थियों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई उनको कितनी समस्या हुई। तनुज जी, बड़े करीब से आप भी देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो अमूमन बड़े मामले सब आपके पास आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। यही बात धर्मेंद्र प्रधान ने भी कही, जो शिक्षा मंत्री हैं। और बिहार के रिजल्ट अलग हैं, गोधरा में रिजल्ट अलग है, दोनों जगह पेपर लीक की बात आई है। ब्रैकेट बढ़ा दिया जाता है 9 से 10 दिन बाद, 10 अप्रैल को एक वेबसाइट फिर से खोली जाती है और 24,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 20 बच्चे पहुंचे हैं, अब उनका रुख क्या होगा और इसमें क्या होना चाहिए कानूनी तौर पर? अगर हम जाने, क्या ये परीक्षा रद्द हो सकती है, एनटीए पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर जांच इसको एक विशेष कमेटी बनाकर कराई जा सकती है, क्या हो सकता है? तनुज जी, आपको बताता हूं, मेरी जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले देखिए, 3 तरीके की पिटीशंस दायर की गई हैं। हम ये समझे पिटीशन दायर क्यों की है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई क्यों है, इसको हमें समझना होगा। आज दिन तक 720 मार्क्स नीट जैसी परीक्षा, जो कि बहुत टफेस्ट एग्जाम होती है एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए, और ऐसी एग्जाम में 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों का आंकड़ा इतिहास में देश में पहली बार 67 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर लेकर आए, जो कि हाईएस्ट स्कोरिंग होती है। तो देखिए, जनरली ये स्कोर आज तक देश में 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे तरीके से लाते थे, लेकिन अगर 67 बच्चे अगर 720 नंबर लाते, खास करके एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने ये स्कोर किया है हाईएस्ट, तो हमें समझना पड़ेगा याचिका लगाई इसीलिए गई है। और सबसे पहले देखिए, जो ग्रेस मार्क्स और जो मार्क्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के 4 दिन पहले जो निर्देश दिए वो इसी के ऊपर दिए हैं कि सबसे पहले इनको हटा करके और री एग्जामिनेशन 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स आवंटित थे, जिसमें 720 का स्कोरिंग था, वो हटा करके उनके री एग्जामिनेशन 23 जून को कराने के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी निर्देश कर चुका है। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन देखिए, देश में अब जैसे जहां शिक्षा मंत्री या जो एनटीए, अब एनटीए जो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक पूरे इस टाइप की जितनी भी एग्जामिनेशन है उसकी एक एजेंसी है भारत सरकार के द्वारा संचालित, जिसमें काफी वरिष्ठ और अच्छे लोग होते हैं जो कि इस तरीके की एग्जामिनेशन की पूरी टेस्ट कराने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाते हैं। अगर आज एनटीए जैसी एजेंसी पर अगर उंगली उठी है, या देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अगर कहीं कार्रवाई की बात करते हैं कि अगर कोई जिम्मेदार, तो निश्चित रूप से देखिए, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में और भी याचिकाएं हैं, और पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ इसकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर भी फैसला आना बाकी है। तो निश्चित रूप से हमें कोर्ट की प्रक्रिया पर और इस पर भरोसा रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी आने वाले समय में हमें देखना होगा कि इसमें और भी क्या सबूत जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कि इसका परिणाम क्या होता है हम सभी देखेंगे उसको। विशाल जी। जी बिल्कुल। अब मैं जो नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनका रुख करता हूं। लालू कनौजिया है नीट अभ्यर्थी और विभू पांडे। सबसे पहले लालू कनौजिया के पास चलता हूं। तैयारी कब से कर रहे थे, नंबरों को लेकर क्या कहोगे, और जो ये सब हो रहा है, मान लो पेपर रद्द होता है, क्या प्रेशर पड़ेगा? देखिए सर, तैयारी जो ये थी ये तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसा कि हम लोग 10th में आते हैं और 10th में बताया जाता है कि अगर आपको नीट करना है तो विभू मैं आपके पास आऊँगा। मैंने ये सवाल लालू से पूछा हुआ, लालू कनौजिया जो हमारे साथ। लालू, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे तमाम बच्चे 5 साल से 6 साल से अपने जी आपकी आवाज़ फंस रही है। अपनी बात को रखें, अपनी बात को रखें। जी जी, आपकी आवाज़ फंस रही। जी, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जिसे कोटा, पटना, लखनऊ और तमाम दिल्ली, तमाम जगहों पे बच्चे, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। चलिए फिर से मैं ये टीम से कहता हूँ, अपने घरों से बाहर तमाम एग्जामों की तैयारी करते हैं, और वैसे में उनको एक एग्ज़ाम देने का जब टाइम आता है, उस टाइम के बाद अगर इस तरह से पेपर लीक हो तो उनके भविष्य
निश्चित तौर पे गर्त में जाते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। देश में तमाम सारे पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, विशेषकर नीट की जहाँ तक बात है हम लोगों की, तो नीट में हमें हेलो, आप बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा बोलिए, हम सब आपको सुन रहे हैं। लालू, आवाज़ फंस रही? जी नहीं, आप बोलते जाइए, आपकी आवाज़ सही आ रही है हम तक। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा था कि जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है नीट की बात है, मैं अभी धर्मेंद्र पेपर लीक हुआ, पटना में गिरफ्तारी हुई, एक ही सेंटर पे कई टॉप करने वाले बच्चे एक ही सेंटर के हैं, और ऐसे तमाम मामले आने के बाद भी जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका जो बयान आया वो बिल्कुल संदेह के घेरे में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा माफिया हैं वो और कोचिंग माफिया, तमाम लोग कहीं ना कहीं जाके सरकार से इनके तार जुड़े हो सके, तभी इतनी उनके बयान जो आए वो उसे नहीं लग रहा था कि वो उनका छात्रों के पक्ष में उनका बयान हो। मुझे उम्मीद थी, मैं जब उनका बयान देखा तो मुझे लगा कि उनका बयान छात्रों के पक्ष में होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल हम इसको देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको करके हम इस मामले को सही से निपटारा करेंगे। लेकिन ये जो उनका बयान आया था, मुझे काफ़ी उनसे उम्मीदें टूटी कि अगर सरकार इस तरह से जिनके जिम्मे ये सारी एनटीए के बाद जो जिम्मेदारी ज़्यादातर बनती है वो तो केंद्र सरकार की है, शिक्षा मंत्री की है उसमें, तो ये जो इस तरह से जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये निश्चित तौर पे छात्रों के भविष्य को गर्त में ले जाने वाली है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम ऐसे जो घटनाएं हैं उन तमाम घटनाओं को रोक लगे, किसी भी तरह का कोई भी पेपर लीक हो उनमें उचित कार्रवाई हो ताकि इस तरह घटनाक्रम रेगुलर ना हो। ये आम बात हो चुकी है, इन आम बात को हमें कैसे ख़त्म करना है वो सरकार इस दिशा में उचित कदम, सरकार एनटीए और सरकार के जिम्मे है। अगर सरकार का जिम्मेदारी मुझे लगता है एनटीए से ज़्यादा है, क्योंकि अगर एनटीए कुछ गड़बड़ करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मामले को जल्द निपटाया जाए। जो भी छात्र हैं, मैं तो अपनी तरफ से एक मांग करता हूँ कि दोबारा पेपर हो, क्योंकि मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है और जो वो बच्चे कम हैं, जो फ़ायदेमंद हैं वो कम हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम बच्चों का ध्यान रखते हुए पेपर दोबारा कराए जानी चाहिए और जिससे कि हमारे जो बच्चे छूट गए थे, छूटने का मतलब जिससे कि वो जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है उनके साथ न्याय हो सके। बिल्कुल न्याय होना ही चाहिए। जब अब आप लोग अटेम्प्ट की बात है, एग्ज़ाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। विभू के पास चलेंगे। विभू, क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं? सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट के पेपर में ही आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई है नीट के बारे में कि एनटीए क्या कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं एक ही सेंटर के 10 लोग टॉप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि जैसे कि बच्चा 10th में आता है, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो वो नीट की तैयारी 10th से शुरू करता है। 11th में किसी कोटा या कहीं भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है और वहां जाके पढ़ता है। तो फिर जब वो एग्जाम में आता है, बैठता है, उसके बाद उसको ऐसा परिणाम देखने को मिलता है तो बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है बंदे का। अगर अभी आप देखते हैं कि इतनी मेरिट जा रही है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि अभी मुझको 650 अपना स्कोर करना है तो इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अब आप देखते हैं कि मेरिट भी इतनी हाई जा रही है, हर साल 20 से 30 नंबर बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा तो इससे मोरल डाउन होता है। और जैसा कि हो रहा है अभी पेपर लीक की खबर जैसे जुड़ी है तो इससे काफी इफेक्ट पड़ा है। मुझे अपने पर्सनल व्यू में बताऊं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि आगे मैं तैयारी करूं, हो सकता है अगली साल भी ऐसा हो जाए, फिर क्या होगा। मुझे लगता है हताश नहीं होना चाहिए, जो होगा हो सकता है आप लोग को परिणाम अच्छे मिले। आपका पहला अटेम्प्ट है, बिल्कुल हताश मत होइए। हम पीएस परिहार जी के पास चलेंगे। सर, अब देखिए बच्चों का मोराल इस तरीके से डाउन है, एक बेचारा कह रहा है कि शिक्षा माफियाओं का खेल है और री एग्ज़ाम करा दीजिए तो जो बच्चे जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। एक का पहला अटेम्प्ट है, वो कह रहा है कि अब मुझे लगता है ही नहीं मैं आगे क्या तैयारी करूं, कहीं फिर ऐसा हो गया तो। आप लोग को भी प्रेशर होता है ना, आप लोग तो तैयारी मन से करा रहे हो, बच्चे 10 से आ गए हैं आपके पास। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर अनम्यूट कर लीजिए।
देखिए ये जो बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, और जैसे डे बाय डे इस पे जांच होती चली जा रही है तो कुछ न कुछ नया एविडेंस इसमें आते आ रहे हैं। हाँ, ये जैसे बात करें कि इनकी एग्जाम रद्द होने की, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और एक इसमें ये तो सच है, इसमें स्कैम हुआ है और इसमें कुछ कारपोरेट कोचिंग के लोग इन्वॉल्व हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसी में आपने जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गोधरा में, एनटीए ऑब्जर्वर अपॉइंट करती है, उसको जो पहले से अपॉइंटेड था उसको हटाया और सडन नया अपॉइंट किया लोकल का। एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा एक तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो आपका कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल का, सिटी कोऑर्डिनेटर एनटीए का, उसने कोचिंग संचालक के साथ कुछ बच्चों को पास कराने के लिए पैसे दिया। ये बात बिल्कुल शासन के आगे और शासन इसको छिपाता रहा, किसको नहीं करना चाहिए। ये कुछ जगह तथाकथित जगह हुए, ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं या नहीं हुए, ये बिग क्वेश्चन मार्क्स है। ये जांच का विषय है। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सरकार को चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच बहुत जल्दी से करे, क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर एक विशेष तरह के क्वेश्चन, गार्जियन हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, अदर, फिर इसमें डिसीजन होना चाहिए। एक बात ये भी है, जैसे मेरिट बढ़ती जा रही है, एक्चुअली ये सब स्कैम के ही रिजल्ट नहीं है। इस साल यदि एनटीए का आप देखें, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी या बॉटनी हो, पेपर का लेवल भी लो था। तो बट नेचुरल हम ये कह सकते हैं कि स्कोर और मेरिट तो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। अब आईआईटी जेई का ले लीजिए, 360 में 355 स्कोर गया, तो नो डाउट एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। किंतु इस तरह की जो घटनाएं आ रही, जो एविडेंस आ रहे हैं, इससे जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्जियन है और टीचर, सभी का जो विल पावर है, ये खराब हो रहा है। इसकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल, हम आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम एक ब्रेक का इशारा है, आप बने रहिए। मैं तनुज बात कर रहे हैं नीट पर सवाल, सड़क पर बवाल। अमूमन नीट के पेपर बहुत शांति से हो जाया करते थे, पता नहीं चलता था। लोगों के यहाँ से खबर आती थी कि फले का लड़का नीट में सेलेक्ट हो गया है, सरकारी कॉलेज मिल गया है और अब वो डॉक्टर हो जाएगा। इस बार नीट की परीक्षा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया और उस पर सवाल ये आया कि कहीं पेपर लीक का सवाल आया, कहीं पर बच्चे हाथ में OMR सीट और जो क्वेश्चन पेपर उसको लेकर बाहर आ जाते हैं, कहीं पर इंग्लिश माध्यम के बच्चे को हिंदी माध्यम का पेपर दे दिया जाता है, तो कहीं हिंदी माध्यम के बच्चे को इंग्लिश माध्यम का पेपर दे दिया जाता है। हैरत की बात जब होती है जब एक ही संस्थान से कई बच्चे टॉपर हो जाते हैं। ये और नीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चुने हुए बच्चे, इनसे पढ़ने के बाद जो बच्चे डॉक्टर तैयार होते हैं, उनको लेकर भी फिर सवाल होने लगेगा। लगातार पेपर लीक की बात पूरे देश में हो रही है, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर आप झारखंड या बिहार की बात करें, जहां पर एक पूरे क्वेश्चन पेपर को बोर्ड पे चस्पा करके उनके आंसर लिखे जाते थे। ये सब चीज़ें इसी देश में हो रही हैं। वो बात अलग है कि नीट पर किसी को शक नहीं हो रहा था। आमतौर पर हमारे शिक्षा मंत्री हर चीज़ों का मुखर जवाब देते हैं, लेकिन उन्हें भी भरोसा नहीं था कि नीट के पेपर में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को फिर से सुनवाई है, 14 जुलाई को फिर सुनाई, उसके लिए हम तनुज के पास चलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो एनटीए में सुधार की बात कही है, जब एनटीए सुधार की बात पहले से पता थी या अभी पता चली, तो क्यों ना एक जांच कराकर उन सारे दोषियों पर कार्रवाई करा दी जाए जिन्होंने इस पूरे मास लेवल पे होने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तनुज विशाल जी मेरा सवाल तो यही है कि भाई अब मुझे लगता है कोर्ट की छुट्टियां हो गई हैं, अब वो 8 या 14 जुलाई के बीच में इसकी एक जो तारीख है वो नियत की गई है। 650 बच्चों को OMR शीट, जिनको 650 अंक से ज़्यादा मिले हैं, 620 से ज़्यादा, उनको कहीं ना कहीं उनकी OMR शीट की फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है। और अगली चीज़ जो लगी है उसमें लगा है री एग्ज़ाम करा दी जाए। कितना मुश्किल है या कितना सही रहेगा री एग्ज़ाम कराना, अगर कोर्ट ये आदेश देता है तो? सुप्रीम कोर्ट का जब कभी भी इंटरफेरेंस होता है तो निश्चित रूप से न्याय की जो गुहार है उसको मान्यता मिलती है।
ये गुहार कितनी जेन्युइन है उसके ऊपर निश्चित रूप से न्यायाधीश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। और मुझे लगता है कि जो भी इंटरिम रिबेट मिलना है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए 8 जुलाई 14 जुलाई जो मैंने आपको बताया थे कि जैसे कि 3 पिटिशंस लगी हैं, अभी एक पे ही फैसला हुआ है, एक में ग्रेस मार्क्स हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे और री एग्जामिनेशन के ऑर्डर करे, बाकी 2 पे सुनवाई बाकी है। तो जो भी बेंच डिसाइड करेगी वही फैसला आने के बाद ही अपन उस पर चर्चा कर पाएंगे विशाल जी, पहला। दूसरा देखिए, एक इस देश की ड्रॉबैक हम समझते हैं छोटा सा, पिछले 10 साल के अंदर इस देश का बजट जो है वो तकरीबन 170% से बढ़ा है बजट। लेकिन हम अगर वहीं शिक्षा बजट की बात करते हैं तो वो मात्र 60% से ग्रो करा है। जो बजट है इस समय शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो बजट पूरे बजट का मात्र 2.9% अप्रोक्सीमेटली 3%, मात्र 3% बजट होता है शिक्षा का इतने बड़े देश के अंदर। इसी वजह से हम लोगों की जो आज दुनिया भर में रैंक है वो 144वें रैंक पे है हम शिक्षा के स्तर पर, जिसमें हम लोग बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश हमसे आगे हैं आज भारत से। देखिए, मैं तो मोदी 3.0 जो नई गवर्नेंस है, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा इस के न्यूज के माध्यम से कि भाई अब जो है शिक्षा पे भी जिस तरीके से रोजगार पर, गरीबों पर, दूसरे विषयों पर जिस तरीके से सरकार पूर्ण केंद्रित है, उस तरीके से आने वाले भविष्य छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो एजुकेशन अच्छी लेंगे तो देश अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा अच्छा, देखिए इससे हमको देखने को क्या मिलता है, आज देश भर में 24 लाख स्टूडेंट्स तकरीबन डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय मात्र 1,08,000 सीटें हैं एमबीबीएस के अंदर। आप बताइए, रिक्वायरमेंट, पोटेंशियलिटी और इन सब की अगर हम चर्चा करें तो कितना मुश्किल है एक बच्चे को एक सीट एमबीबीएस की पाना। और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में मिलती है तो आप समझ सकते हैं फिर जो है निम्न परिवार या मेरे परिवार से ही एक मेरा रिश्ते में भतीजा लगता है, वो सरकारी उसमें ट्राई करता रहा, नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से इतना मोटा डोनेशन लेके एडमिशन दिया है, वो तो हॉस्टाइल हो गया। जैसे विभू कह रहे थे कि भैया कैसे करें, वो मुझसे पूछता था, मैंने कहा भाई एक बार और ट्राई कर लो। कहता आप ट्राई करेंगे तो सारे अटेम्प्ट निकल जाएंगे, फिर कॉलेज नहीं मिलना है मुझे। हम और जब होता क्या, चलिए सबका आईक्यू एक लेवल का नहीं होता, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, ये तो बांटा भी अलग तरीके से जाता है ना। ये तो अभी खुला आया, इससे पहले कितनी बार हुआ को पता ही नहीं चला है हमें कि नीट के पेपर में इससे पहले कितनी बार खेल हो चुका होगा। निरंतर रूप से सामने आए हैं और इस तरह की कोई भी धांधली में निश्चित रूप से जो एक कथन है उसमें जो आज हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो लोग काम कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब सुनवाई होगी तो जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो पॉजिटिव होगी। जी विशाल जी, अभी को होना भी चाहिए। लालू कनौजिया के पास चलेंगे। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे, कब तैयारी कब से कर रहे थे? और जब ये पूरा वाकया हुआ, जब रिजल्ट आया 4 जून को, जो कि 14 जून को शायद आना था, ये रिजल्ट 4 जून को आता है, और फिर रिजल्ट को लेकर आप लोग के अंदर मन में क्या था कि भाई हमने तो इतने हमें लग रहा था कि मेरे नंबर आएंगे, या तो बहुत आ गए या बहुत कम आए, ऐसा कुछ हुआ? मैं तनु जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था। उन्होंने बजट की बात की, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। देखिए, जब तक मुझे लगता है जब तक सरकारी चीज़ें हैं तभी प्राइवेट चीज़ें हैं, चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो और उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज हो। सब चाहते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो। उसमें एक दूसरी चीज़ साथ ही है कि कोई बच्चा लाख रुपए, जो न्यूनतम जो मतलब नॉर्मल कोचिंग है उनमें लाख रुपए की मतलब साल भर की फीस दे करके 1 साल वो तैयारी करता है और फिर जाता है एग्ज़ाम देने, और उसकी एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। इस तरीके से वो उसके भविष्य जो गर्त में जाता है, उस चीज़ का अंदाज़ा आप बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल बैठ के नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते होंगे तमाम पेपर देने से पहले ही लड़के आत्महत्या करते हैं, और इसके बाद स्थिति क्या होगी जो हमारे न्यूज़ चैनल तक नहीं पहुंचती है।
ये बात समझने वाली है। मैं साथ ही साथ ये बोलना चाह रहा था कि एक जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बचे खुचे थे, प्राइवेट में तो जो बच्चे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो तो प्राइवेट कॉलेज लेते थे, जो सरकारी संस्थान बचे हुए थे उस पर ये माफिया घुसना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है निश्चित तौर पे सरकार के नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं और सरकार बिल्कुल इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने से बच रही है। मैं सीधे इस चीज़ को बोल रहा हूँ और ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार ऐसे तत्वों से बिल्कुल सख्त तरीके से निपटे ताकि उन तमाम देश के भविष्य को सुधारा जा सके, क्योंकि वही ये बच्चे वही हैं जो कल के जाके आपके सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके आपको सेवाएं देंगे। अगर ऐसे में आप क्या मुन्ना भाई MBBS 2 बनाना चाहते हैं क्या ये लोग? अगर ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई हो, जो भी लोग दोषी हैं उनको उचित कार्रवाई हो, क्योंकि वो फिर ये दोबारा रिपीट ना हो मैटर, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है। बिल्कुल गंभीर मामला तो है ही। विभू के पास चलूँगा। विभू, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? अब आपका तो पहला अटेम्प्ट था, अब अगले अटेम्प्ट के लिए आप हताश तो बिल्कुल मत हो और अच्छे से करें। हो सकता है इसी अटेम्प्ट में आपके फिर से अगर री एग्ज़ाम की बात आती है तो इसी अटेम्प्ट में आपका पहला ही अटेम्प्ट हो जाए वो। लेकिन बतौर स्टूडेंट कितना प्रेशर होता है नीट या किसी भी बच्चे पर? अगर नीट की हम बात कर रहे हैं आज, तो नीट पर जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर कितना प्रेशर होता है? कैसे पढ़ाई का शेड्यूल होता है, दिनचर्या क्या होती है, और रिजल्ट तो जो देख रहे हैं अभी तो चल ही रहा है हर जगह। जी देखिए कि लगभग वही 11 से हम लोग शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल का भी प्रेशर होता है, क्योंकि स्कूल के भी सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं और फिर उसके बाद में भी तो स्कूल के साथ लेकर तैयारी चलानी पड़ती है। उसके बाद काफी बार क्या होता है कि जो बच्चे जैसे बाहर कोचिंग कराते हैं उनका तो अलग है कि उनको सेपरेट टाइम मिल गया, और कुछ बच्चे जो घर पे रहते हैं उनका घर को भी देखना होता है, तो डबल प्रेशर रहता है। और काफी बार क्या होता है कि हताशा तब हाथ लगती है जब हम मॉक देते हैं उसमें हताशा लगती है हाथ में कि अरे इतना सोचा था, अपने नंबर नहीं आए, और फिर भी धीरे धीरे करके हम काफी हद तक कर लेते हैं लास्ट टाइम, मगर फिर ऐसा हो जाता है तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। मैं दो दर्शक हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद मैं चलूँगा PS परिहार जी के पास। हमारे साथ नीतू लखनऊ से जुड़े हैं। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर। सर देखिए, पिछले 10 सालों में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी पेपर फेयर तरीके से नहीं करा पा रही है। सभी पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब की बार तो 12th का ISC बोर्ड का केमिस्ट्री का भी पेपर लीक हो गया था, जो कि मतलब रिकॉर्ड है, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। आप 12th के भविष्य। एक सेकंड नीतू जी रोकूंगा। 12th के किस पेपर की बात कर रही हैं? कोई स्कूल, कोई एक जगह रही होगी वो? नहीं, वो मतलब सबका ऑल ओवर इंडिया में लीक हुआ था। पेपर कैंसिल हो गया था, उसको दोबारा मतलब उसकी नई डेट आई थी तब पेपर हुआ। तो ये हम सभी बच्चों के भविष्य का सवाल है कि सरकार कोई भी पेपर ढंग से नहीं करा पा रही है। और नीट के एग्जाम में जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा स्कैंडल है, सबूत भी मिल रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। और NTA जैसा कह रहा है कि हम 24 लाख बच्चों का पेपर दोबारा नहीं करा सकते। क्यों सर, क्यों नहीं करा सकते? जब चुनाव हो सकता है 140 करोड़ की आबादी में, तो पेपर दोबारा क्यों नहीं हो सकता? पेपर दोबारा होना ही चाहिए। बिल्कुल। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन है देहरादून से। पवन, अपनी बात को रखें। सर, कई दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि गोधरा और पटना की जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीक नीट का, और बच्चे सड़कों पर हैं। तो ये बड़ा शर्मनाक है। राष्ट्रीय स्तर के जो है एक एजेंसी पेपर कराती है और इस तरह की घटनाएं होना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां 24 लाख बच्चे इस पेपर को दे रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जाए और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, और जो रैकेट लगे हुए हैं स्कैम करने के लिए, उनसे छुटकारा मिले।
बच्चों के भविष्य के लिए इसे नीट को दोबारा कराना चाहिए, ताकि बच्चों को विश्वास रहे सरकार पे और एजेंसी पर। बिल्कुल, ये हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं रुक करूंगा पीएस परिहार जी का। पीएस परिहार जी, मतलब मैं जितने दर्शक जोड़ूं या किसी को भी, जो भी दर्शक अपने आप जोड़ रहे हैं, नीचे फोन लाइन फ्लैश हो रही है, वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं, भाई ये एग्ज़ाम करा लीजिए। अब एनटीए कह रहा है कि 40 लाख या 24 लाख जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम एक साथ नहीं हो सकता। एक दर्शक कह रहे हैं कि भाई 140 करोड़ का चुनाव तो आप एक साथ करा लेते हैं, आप उनका भी फेज वाइज करा लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी लाइटली चीज़ों को लेना चाहिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को? सरकार को इससे मुझे उम्मीद है कि यथोचित डिसीजन लेगी अपना, लेकिन ये सब जो गड़बड़ हुआ है ये एनटीए के द्वारा किया गया है। और ये भी पूरे हम नेशन पे देते हैं, सारी स्टेट्स को लेते हैं, तो ये घटनाएं कुछ जगह हुई, अभी तक ये पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है और कहा नहीं जा सकता है कि स्कैम बहुत जगह हुए हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि बहुत सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने नजर में, अपनी अध्यक्षता में, अपने ऑब्जर्वेशन में इसकी स्वतंत्र जांच कराए। सरकार को तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया के जिस स्टेट में जिन सेक्टर में जांच के बाद जहां पर ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां कैंसिल करना चाहिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो नीट एग्जामिनेशन है पूरे को कैंसिल कर देना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप ये भी देखिए, मान लीजिए इसमें 20% बच्चे पार्टिसिपेट हैं, 20% हुए, 25% हुए, लेकिन 75% बच्चे तो डे नाइट एक करके अपने 12th अपेयरिंग स्टूडेंट होते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, डे नाइट प्रिपरेशन किया है और अपना फेयरली रिजल्ट अच्छा किया है, उनका कैंसिल कर देना कहाँ का जस्टिफाइड? कल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, मेरा क्या दोस्त है इसमें, क्यों कैंसिल किया गया? अब कानपुर में ही ले लीजिए, मेरे केमिस्ट्री में करीब 18 स्टूडेंट है, 180 जो पेपर हुआ था, मैंने तुरंत उसका रिजल्ट एनालिसिस किया था। तो मेरा तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट से भी विश्वास भरोसा दिला रहे हैं और उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ही कड़ा निर्णय लेना चाहिए बच्चों के हित में। उनके अंदर ये जो डाउट क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके अंदर ये जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह के जो रूमर्स भी फैला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हो जाए, एक बार जांच हो जाए कहां कहां पर हुआ, क्या वास्तव में बहुत जगह ऐसा सिस्टम हुआ। यदि जांच में पाया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कि यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो सरकार को चाहिए कि नीट एग्जाम कैंसिल करे, लेकिन बहुत जल्दबाजी ना करे, क्योंकि इसमें जो क्लियर स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम एक्चुअली बहुत अच्छा क्वालिफाई किया है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कई वर्षों से भी कंपैरिजन करें तो इस बार पेपर का जो लेवल था वो स्टैंडर्ड नहीं था, एवरेज था। तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया है, लेकिन इसी के बीच में अब जिसका जैसे बहुत डाउन हुआ है वो भी परेशान, वो भी चिल्ला रहे कैंसिल होना चाहिए जी। तो जो बहुत अच्छा किया है उनके साथ अनजस्टिफाइड नहीं है, इस पर जांच का विषय जांच हुई। अच्छा, एक सवाल मैं और लूंगा आपसे। शिक्षा माफियाओं की बात आ रही है, कोचिंग सेंटरों की बात आ रही है, क्या आपको लगता है कि इतने मजबूत कोचिंग माफिया हो गए हैं भारत में? एक्चुअली देखिए सर, कोचिंग को प्रकार के कुछ तो कारपोरेट कोचिंग है, वो अपनी छवि चमकाने के लिए, बिना हार्ड वर्क किए बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए, हिंदुस्तान के सारे रैंकर को पीछे करने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट। अच्छा खासा ये एनटीए के कुछ लोकल, इसमें पूरे एनटीए को मैं नहीं मान सकता कि एनटीए ने गड़बड़ किया, लेकिन एनटीए के तो के अंदर में हो रहा है। तो लोकल जो यहाँ पर सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो सीएस होते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, वहां जो ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि उनको सांठ गांठ करके और पेपर को धीरे से लीक आउट करके उन्हीं के अंदर रहते हैं, पेपर देखते रहते हैं। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि पेपर की जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। ये जो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, मैं ऑलरेडी कई जगह ऑब्जर्वर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, पेपर को बड़े आसानी से मोबाइल से स्कैन करके भर किया जा सकता है। इसके संबंध में एनटीए को, भारत सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को, क्योंकि उनके पास फिल्टर होकर सारा मैटर पहुंच गया है,
और इसमें निष्पक्ष जांच करा करके जरूरत पड़े तो कैंसिल करना भी। बिल्कुल। हमारे साथ सुमेर सिंह है, दर्शक राजस्थान से। सुमेर जी अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जो इस तरह का प्रकरण आपने उठाया है। दूसरा, गरीब के बच्चे कभी भी इस तरह के कारण जो है ना वो डॉक्टर नहीं बन सकते, और इसमें बिना राज के योग के ये इस तरह के पेपर लीक नहीं होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व भी है भी जो पेपर लीक हुए हैं इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी एक स्टेट का पेपर नहीं है, पूरे भारत का पेपर है ये, जिसमें ये, और इतना ही नहीं, पिछले दिनों एमसीसी का पेपर आउट हुआ था जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है, शिक्षा के अधीन होता है। इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और इनके भविष्य के साथ जो है दिग्वाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद तो हमें भी यही है कि बच्चों के साथ न्याय होगा और सभी बच्चों के साथ न्याय होगा। तनुज जी, शिक्षा माफिया का जिक्र बहुत होता है, कोचिंग माफियाओं का जिक्र भी इस बार हो गया है। भाई कोचिंग माफिया हावी हो जाते हैं सारे उसमें। मैंने देखा है कहीं किसी एक वो अपने घर से पढ़ के पास हो गया हो तो उसकी फोटो में 4-5 कोचिंगों में स्वयं एक बार देख चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ क्या, वो एक दूसरा पेपर था। लेकिन कोचिंग माफियाओं को लेकर भी सख्ती होनी चाहिए मुझे लगता है। एक जैसे कोई पिटिशन अगर डाली जाए, ये मैं आपसे सवाल, मेरा सुझाव भी है, अगर ये आप करते हैं मेरी कहीं मदद तो मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि जो कोचिंग कल्चर हावी हुआ है इस देश पे, उसने अपने बच्चों को घर से दूर कर दिया। सब लोग एलन देख रहे हैं, सब लोग कोटा देख रहे हैं, सब लोग कुछ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ की हालत सच में बहुत ही पीड़ादायक है। तनुज जी। विशाल जी, देखिए, निश्चित रूप से जो एक माफिया शब्द है वो सिर्फ एक एजुकेशन इंडस्ट्री में ही नहीं, सभी इंडस्ट्रियों में एग्जिस्ट करता है। जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो, जब काफी कहते हैं ना अच्छा उनके पास में स्टूडेंट्स का गैदरिंग और काफी अच्छा उनका नाम हो जाता है, तो निश्चित रूप से उनका इंटरफेरेंस सीधा जो है दिग्गज, इस फील्ड के दिग्गज लोगों के साथ होने लगता है। तो जब इस तरीके की गतिविधियां शुरू होती है तो देखिए माफिया जो शब्द है वो लेना खराब नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके इंटरफेरेंस से काफी चीजें कुछ सही भी जाती है, कुछ गलत भी। मतलब देखिए, पावर को हैंडल करने का जो सिचुएशन आती है उनके हाथ में, वो उसको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कई बार हमारे ज्ञान के अभाव में, कई बार एक नजरअंदाज करने की वजह से कई सारी चीजें जो है ये माफिया लोग फायदा ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह की जो संगठन है, इस तरह की जो कोचिंग है, जिस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर सरकार को एक लिस्ट बना करके सख्त रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और कार्रवाई इस तरीके से हो कि इस तरह की इंस्टीट्यूट्स की रीढ़ की हड्डी ही जो है बिल्कुल इफेक्टेड हो, ताकि वो दोबारा इस तरीके का साम्राज्य या माफिया ना बन पाए एजुकेशन इंडस्ट्री में, खास करके। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। शिक्षा जो है वो देश का भविष्य निर्धारित करती है। शिक्षा अच्छी मिलेगी, सच्ची मिलेगी, तो बच्चे भविष्य में अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएंगे और देश और आगे प्रगति करेगा। जी विशाल जी, वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा कानून निकाला जाए ना कि इन लोग को पता चल जाए कि भाई अगर आप बच्चों के भविष्य या भारत के भविष्य या दुनिया के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ यही होना है। मुझे याद है मेरे कई दोस्त जो कि भारत में नहीं कर रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई, तनुज जी, वो रशिया में कर रहे हैं जाके, और बाकायदा रशिया में चूंकि यहाँ के हिसाब से शायद वहाँ पर जो है जो फीस है वो कम है और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। कई दोस्त हैं मेरे जो मेरे जानने वाले हैं, वो रशिया से पढ़ते, तो मेरी बातचीत हुई तो वो भी कल मुझसे कह रहे थे यार इसीलिए तो डर लगता है। अभी आपने बीच में अगर एक फैसला सुना हो केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव के दरमियान कि अब जो कोचिंग सेंटर में एडमिशन की एज है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की शुरुआत हो चुकी है। आप भी शायद इसके लिए जानकारी रखते होंगे। जी। तो जैसे कि अभी जल्द ही एडमिशन के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एज लिमिट क्राइटेरिया डिसाइड कर दी है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे सरकार को ध्यान देना होगा और कड़े नियम और कड़े कायदे मिनिस्ट्री को, नए मंत्री को और शिक्षा जगत में बनाने पड़ेंगे, जिस वजह से आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में और इस तरह की जो एजेंसियां हैं जो इस तरह की कृत्य अगर हम लोग देख रहे हैं या होते हैं
तो उस पर निश्चित रूप से अच्छी कार्रवाई करके और देश में, समाज में एक अच्छा छात्रों में, खास करके छात्रों में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए और सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं तनुज जी से बात, अब मैं रुक करूंगा लालू का फाइनल कमेंट में लूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से और देश के बच्चों से कि वो धैर्य रखें? ये तो के न्यूज़ की अपील है, लेकिन आप क्या बच्चों से कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए देखिए धैर्य रखने का जो मामला है उससे बात आगे निकल चुकी है। हम कब तक धैर्य बनाएं? मैं नीट के बच्चों को तो बोल सकता हूँ चलो धैर्य बनाओ, बाकी बच्चों का क्या, जो तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये धैर्य की अंतिम घड़ी है और इसके साथ ही मैं सरकार को भी इस मामले से चेतावनी दे रहा हूँ इस हवाले से कि वो इस चीज़ों को दूर करे, इन तमाम गलतियों को, और इनमें जो भी उचित कदम हो वो जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को संवारा जाए। बस जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लालू, आपका भी। तनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर PS परिहार थे, नीट संचालक, आपका भी बहुत शुक्रिया। विभू पांडे नीट अभ्यर्थी थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक हमारे साथ स्नेहल जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। स्नेहल अपनी बात को रखें। जी सर, धन्यवाद, आपने हमें चांस दिया बोलने का। इसमें सर एक ऐसी बात कहना चाहूंगी कि मेरी बिटिया को 675 मार्क्स पड़े हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि उसका AR आ रहा है 12,000। हेलो जी, आप अपनी बात को पूरा करें। जी सर, तो 12,000 जब AR आ रहा है तो आप बताइए कि कौन से, जिस जगह पे जब 675 मार्क्स गिर रहे थे बिटिया को, तब हमने सोचा था कि इसको कोई एम्स मिल जाएगा क्योंकि उसके कैलिबर के हिसाब से उसे वो कॉलेज मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसका अगर AR 12,000 आ रहा है तो आप ही बताइए कि वो बच्ची क्या करे, जिसने 12-12 घंटे दिन में से 16-16 घंटे पढ़ाई की है और उसे फिर भी अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि उसको ये भी अभी तसल्ली नहीं है कि भाई मुझे अच्छा GMC भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने। रतन हमारे साथ एक दर्शक पंजाब से जुड़ चुके हैं। रतन अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने 2-4 दिन देखा आपके टीवी कई चैनल हो रहे हैं, तो ये जो नीट का एग्जाम हुआ ना, होता भी है, तो इसको मिटाने का काम बात कोई नहीं कर रहा। इसका हल ये है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस एक हो जाए तो ये रवा खत्म हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। और एक बार फिर से मैं तनुज दीक्षित आपका भी शुक्रिया करना चाहूँगा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेसर PS परिहार, संचालक है नीट कोचिंग के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विभू पांडे नीट अभ्यर्थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालू कनौजिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नीट पर सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे और हर नीट से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते हैं के न्यूज़। नमस्कार।